Hello students, how are you? Now we are going to start our third chapter of 10 plus 2 class, and the name of the chapter is Thinking Out of the Box, Lateral Thinking. Do you know what's the meaning of this? You don't know? Okay, I am here to tell you. Thinking out of the box, कुछ अलग सोचना, जो एक कन्वेंशनल थिंकिंग है ना, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग सब सेम सोचते हैं उसके लिए, बट वन हु थिंक समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो उसको थोड़ा डिफरेंटली सोचता है, ही इज अ लेटरल थिंकर. ठीक है, थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. Okay, so it's a very interesting story. You will get the knowledge how to get rid of the problems. So for this you have to watch this video till end, and if you are new to my channel, subscribe it and hit the bell icon. And my dear students, all the chapters which we are doing here during these days, the question answers are given in the description. The link is given for the question answers. You just go through the question answers also. Okay, now let's start the story. This is a story about a moneylender who was very ugly and he was very clever too. And what happened, once he lent a lot of amount to the farmer, and then he demanded that my amount should be returned. एक मनी लेंडर होता है जो ब्याज पे पैसे देता है ना, तो वो क्या करता है कि एक उसको पैसे दे देता है फार्मर को, और फिर कहता है कि अब मेरे पैसे जल्दी से वापस करो. बट द फार्मर वॉज वेरी पुअर. ही डिडंट हैव इनफ मनी टू जस्ट पे ऑफ द लोन वट एवर ही हैज टेकन. उसने जो पैसे लिए होते वो उससे अभी दे नहीं पाता. तो मनी लेंडर, ही इज वेरी वेरी shrewd person, he is very clever person. He said, okay, no need of just giving me the loan, you just marry your young daughter to me and I will just you need not to give me your loan back. कि तुम अपनी जो लड़की है, यंग लड़की है, उसकी मेरे साथ शादी कर दो तो मैं तुम्हारा लोन वापस कर दूंगा. Now farmer and daughter both didn't agree because he was a middle-aged man, he was very ugly, and moreover he was not good from the heart. That's why they didn't agree with this offer. Then moneylender said that okay, it will be decided with the luck. He said that in the tomorrow morning I will just pick two pebbles and I will keep those pebbles in my bag, and one will be white, another will be black pebble. And if she will pick the black pebble, then she has to marry with me and I will pay off the debt. अगर वो, मैं एक बैग में दो पत्थर रखूंगा, एक काला एक सफेद. अगर वो काले पत्थर को उठाएगी तो क्या होगा कि वो मेरे साथ शादी करेगी और मैं तुम्हारे सारे का सारा कर्जा माफ कर दूंगा. बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो वाइट उठाती है तो उसको मेरे साथ शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और सारे का सारा जो डेप्ट होगा दैट विल बी पेड ऑफ. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे फार्मर, his daughter and the moneylender and some other people, they just went to that path where so many pebbles were lying. वो उस रास्ते में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे pebbles होते हैं. Then what happened, all the conditions were disclosed to everyone. जो भी शर्तें थी वो सारी सबको बताई गई. And then the moneylender, he picked two pebbles from the path. जो मनी लेंडर था उसने दो पेबल्स, दो पत्थर जो थे वो उठा लिए रास्ते में से. बहुत सारे पत्थर थे. एंड ही जस्ट पिक्ड अप बोथ ब्लैक पेबल्स. उसने दोनों ब्लैक पेबल्स उठा लिए. नोबडी नोटिस्ड, बट द गर्ल, द डॉटर ऑफ द फार्मर, शी नोटिस्ड. उसने वो चीज़ देख ली. किसी को पता नहीं चला कि इसने दोनों ब्लैक पेबल्स उठाए. लेकिन वो जो बेटी होती है ना डॉटर फार्मर की, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. She noticed that both were black pebbles. Do you know what was decided? That one should be white, another should be black. But he picked both, yes, black pebbles. Now the moneylender, he said to that girl that just pick out the pebbles. Now students, tell me, if you are in place of that daughter, what you will do? अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या होते? एक तो आप पहले रिफ्यूज कर देते कि नहीं, मुझे नहीं उठाने हैं बिकॉज मनी लेंडर ने हेरा फेरी की है. ठीक है. या फिर आप ब्लैक पेबल उठा लेते
और अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लेते कि मेरे फादर का जो डेट है, जो कर्ज है, जो लोन है, वो माफ़ हो जाएगा। बट शी थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन उसने क्या किया कि नॉर्मल थिंकिंग से कुछ ज़्यादा सोचा, कुछ अलग सोचा। शी सेड ओके, आई एम गोइंग टू पिक द पेबल एंड माई लक विल डिसाइड व्हाट इज इन माई अकाउंट। वो कहती ठीक है, मैं एक पत्थर उठाने वाली हूँ, अब देखते हैं कि किस्मत मेरा कैसे मेरा साथ देती है या मेरी किस्मत में क्या लिखा है। She very quickly put her hand into the bag and picked one pebble and threw it among other pebbles. उसने जल्दी से एक पत्थर उठाया, उसको देखे बिना बाकी पत्थरों के बीच में फेंक दिया और ऐसे ऐसे शो किया लाइक दिस कि वो मेरे हाथ से एकदम से छूट गए। Now all said that which pebble you just hold? सबने पूछा तुमने कौन सा पेबल पकड़ा? She said I don't know, even I haven't noticed. कहती मुझे नहीं पता, ना ही मैंने ये चीज देखी है। Then she said, oh, one thing we can do, we can see in the bag which is the another one. कहती कोई बात नहीं, मुझे तो पता नहीं मैंने कौन सा पेबल उठाया है, लेकिन बैग के अंदर तो कोई पेबल पड़ा ही होएगा ना, तो इसका मतलब कि मैंने दूसरा उठाया है। कहते इट्स ओके, दे जस्ट सॉ इनसाइड द बैग। मनी लेंडर कहता नो नो नो, ऐसा नहीं देख सकते आप। वो कहती नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सभी कहते हाँ मनी लेंडर को कि नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं है, आप देखिए बैग में कौन सा पेबल है। वो देखते हैं बच्चे, तो बैग में पेबल होता है ब्लैक, बिकॉज ऑलरेडी दोनों ब्लैक पेबल्स थे ना। अब वाइट पेबल का मतलब था कि बिना शादी के सारा कर्ज माफ हो जाना। तो एवरीबडी अंडरस्टूड कि बैग के अंदर दो पेबल्स थे, वाइट और ब्लैक, और वाइट इसने उठा लिया। इट मीन्स कि लड़की ने जो पेबल उठाया उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली नाउ she won't marry that money lender, but all the debt will be cleared, कि बिना शादी के सारा कर्ज माफ हो जाएगा। So see, with the brain, intelligence, activeness, alertness of that girl, how she escaped from the what you will say, from this trap of money lender, कि वो कैसे अपने दिमाग से, समझदारी से, एक्टिवनेस से वो कैसे मनी लेंडर के शिकंजे से फ्री हो जाती है और साथ में अपने फादर का जितना भी कर्ज होता है वो माफ करवा देती है। सी, सो दिस इज अ लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। Now my dear students, the writer, he has written one more interesting story in the same chapter. This is about one millionaire. There was one businessman. He was very rich, and once he visited to the Bank of New York. There he said that I am going out of the country, but I need $5,000 loan. The bank personnel was very surprised. They were very astonished that a multi-millionaire person, he has visited to our bank and he just want to get only $5,000. एक मल्टी मिलियनर जो बिजनेसमैन है वो एक बैंक में जाता है न्यूयॉर्क के और कहता है कि मुझे छोटा सा लोन चाहिए $5,000 का। वो बड़े हैरान होते हैं कि भी इतना अमीर बंदा और हम जहाँ वो वर्ल्ड टूर पे रहा है और हमसे $5,000 का डॉलर का लोन मांग रहा है। वो कहते हैं बट सर वी हैव टू टेक वन सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी पे आप किस चीज़ को आप रखना चाहोगे? वो कहता है ओके, एट द मोमेंट आई हैव माई फरारी, न्यू फरारी, इट इज़ यू जस्ट कीप इट एज अ सिक्योरिटी। वो कहता है मेरी फरारी है, आप इसको एज अ सिक्योरिटी रख लो। और वो कहते हैं कि इसके ऊपर आपको 15% जो है 15% जो डॉलर है वो आपको इसका इंटरेस्ट देना होगा। ही इमीडिएटली एग्रीड, वो मान जाता है। Now after 15 days that businessman he came back, वो वापस आता है and he just kept the amount along with the interest to the manager. कहते हैं कि ये लीजिए आपके अमाउंट जो मैंने लोन पे लिया था एंड दिस वन, ये साथ में इसका इंटरेस्ट है और आप मुझे मेरी जो फेरारी है वो दे दीजिए। फेरारी उसने दे दी थी ना, तो उन्होंने उस फेरारी को बड़ा अच्छे से सेफली उनका जो अंडरग्राउंड गैरेज था बैंक का वहाँ पे रख दिया। अब 15 डेज के बाद ही केम बैक, उसने वो सारा दिया एंड देन ही टुक द कीज। एज ही टुक द कीज द मैनेजर ही सेड दैट एक्सक्यूज मी सर, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू। वो कहता है कि सर मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है।
कहते यस। कहते सर मेरे को ये समझ में नहीं आई कि आप इतने वेल ऑफ, इतने रिच हो, और आपने ये 5,000 का लोन लिया, हमसे कुछ बात समझ में नहीं आई है। ही सेड, could you think that any bank or anybody will take care of my new Ferrari just within $15? कहते आपको लगता है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी बैंक, कोई भी सिक्योरिटी मेरी नई फरारी को सिर्फ $15 में 15 दिन के लिए सेफ रख सकता है? If I park my Ferrari in the street for 15 days, then after 15 days it won't be in a good condition. 15 दिनों के बाद वो एक अच्छी कंडीशन में मुझे मिलने वाली नहीं थी, बिकॉज यू नो ना, समटाइम्स सम स्क्रैचेस कैन बी देयर और सम डैमेजेस कैन बी देयर। कोई इसके ऊपर स्क्रैच डाल सकता था, कोई डैमेज हो सकता था, बट विद हिज लेटरल थिंकिंग, बट विद हिज ब्रेन, ही केप्ट हिज फरारी एट अ वेरी सेफ प्लेस, वेयर in the bank custody. Okay, so this was the lateral thinking, thinking out of the box. जैसा हम लोग नॉर्मल सोचते हैं वो सारे ही सोचते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी सेम होता है। बट व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू थिंक लेटरली, कुछ ऐसा सोचो जो सबसे डिफरेंट हो। ओके, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उस डिब्बे में से कुछ अलग सा निकालो, ठीक है? So this is the way how to get rid of the problems when we are in any problem. Okay? Isn't it was an interesting story? It was an interesting story. Okay, students. So meet you soon with next video. And for the question answers, visit my link that is given in the description. Meet you soon. Till then, it's the time to say bye-bye.